Thank you for attending this election and enlightenment meeting. ये तो सिर्फ इलेक्शन का मीटिंग नहीं है, ये ज्ञान देने का मीटिंग है। हम लोग इलेक्शन क्या है ये तो ट्राइबल लोग पूरा नहीं सोचता। हम लोग बोला है, हम लोग सोचता था इलेक्शन टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, गाहरी मांस, गाहरी मांस खाने होगा और सिरप खाने होगा और तमूल और 100-200 का टका ना, ये तो इलेक्शन बोलता था हम लोग। लेकिन इलेक्शन तो ये नहीं है। इलेक्शन का किताब यहाँ में हम लोग का पास है। इलेक्शन, the law relating to elections, election is a time to discuss, to find out the best candidate, the best person to represent us in parliament and in assembly and in autonomous council. This is election. Not eating pork, not drinking wine, not asking for money. For 70 years, हम लोग 70 साल हम लोग ईटिंग ड्रिंकिंग इलेक्शन करता था। अभी क्या हुआ हम लोग का देश, हम लोग का देश अभी Karbi Anglong, 10 constituencies given to non-tribal people. After 70 years of fighting elections, after 70 years of winning elections, हम लोग बोला है इलेक्शन तो जीतने होगा, हाँ जीतने होगा, लेकिन कौन जीतने होगा, कौन आदमी? This is the सवाल ये है। हम लोग अच्छा आदमी सिलेक्ट करने होगा, ये है इलेक्शन। I cannot speak Hindi properly, that is also somehow it has come out of my mouth. However, I have promised, if I do not know Hindi, हाफलॉन्ग हिंदी तो सीखने होगा। शाहरुख खान तो हिंदी तो नहीं होगा। So this is election. 2 months ago we came to Haflong and some people told us, if you have come for election, you must kill pigs. Pork खाने को देने होगा हम लोग। Just 2 months before. ये तो नहीं होगा, ये तो इलेक्शन नहीं होगा। पोर्क तो मिलेगा बीजेपी का साथ में, और बीजेपी लोग तो बहुत बड़ा पोर्क मिलेगा, और कांग्रेस का पास। Now, therefore, we are faced with extinction. We are faced with আমি নাইকিয়া হব অসমীয়া কলে, মইতো অসমীয়া কলে বেছি easy হয়, easy for me, but you may not like to listen. But we promise that we will be in Assam, although we will have autonomous state. So we are learning Assamese. Is it not so? Yes. Autonomous too होगा, चाहिए, लेकिन असम का अंदर भीतर में, inside Assam, we do not hate Assam.
However, now हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट तो नहीं दिया, लेकिन बराक वैली में मिनी स्टेट दिया असम गवर्नमेंट. असमीज लोग कोई ओपोज नहीं कर रहा. इसीलिए हम बोला आज भी रिपोर्टर का सामने जे हम लोग को ऑटोनोमस दीजिए और असमीज लोग और असम गवर्नमेंट ओपोज डोंट ओपोज करिब नालागे बोली अहोमिया हिंदीत की कय मत ओपोज करिए. Now our district, we are autonomous district. It has been created under the 6th schedule to the Constitution of India. The 6th schedule. In 6th schedule, paragraph 1 and paragraph 20, it is said the Mahasau Autonomous District and Karbi Anglong Autonomous Districts are tribal areas. It is not reservation law. This is the main thing we will have to remember. This is not reservation law. It is the law for constructing a country, a small country. We don't know that. If a small country is constructed, in a country there is no question why other people will get the chance to be the citizens of that country. Whoever comes to that country, they will be foreigners. Likewise, in 6 scheduled areas, the tribal people are the real citizens, the real inhabitants, not citizens, but the real inhabitants. But for understanding, we can say the real citizens. And those who are not scheduled tribe, they are almost like foreigners to this place. This is the meaning. Now therefore, हम लोग ट्राइबल के लिए बोलने को डरना नहीं चाहिए. डरना नहीं चाहिए. Indeed, you should not be afraid of speaking for tribal people. It is not illegal. Even during election, in election code of conduct, it is said community this and that we should not speak. But in 6th schedule area, if we do not speak about tribal, there is no way to speak. Is it not so? There is no way to speak. Ami kobo nuarim. যদি ট্রাইবেলৰ কথা যদি নকয় 6th schedule area, তেতিয়াহলে আমি কথাই কব নোৱাৰিম. সেইকাৰণে we are authorized to speak for tribal people. And while we are speaking for tribal people, to make the people understand, we have to say that non-tribal also. But we cannot say that we have broken the model code of conduct. We have not broken. We are doing as per law. Ami ain mote kori asu. Hum log कानून से बोलता हूँ जे ये तो ट्राइबल का देश है और ट्राइबल ये शब्द ना क्लियर करने के लिए नॉन ट्राइबल ये शब्द भी बोलने हम लोग बोलने सीखेगा. ये तो इलीगल नहीं है. Now, because we do not know the 6th schedule, from the beginning we have violated the 6th schedule provision. In 1953 itself, 1953, we violated the 6th schedule by discarding our own law
हम लोग का ट्राइबल लोग का गांव का लॉ है, गांव कमिटी है, तुलसुम वैसा है, राजी ने सुखो है, क्या डॉर्बर स्नोंग है और शेरवन कैप है और शोंखो दिलगप्पा है गारो के लिए। गारो आदमी है ना, गारो शोंखो दिलगप्पा ना, दिलगप्पा, हाँ शोंखो दिलगप्पा है। ये हम लोग वी हैव डिस्कार्डेड, वी हैव थ्रोन इट अवे, हम लोग फेंक दिया। हम लोग क्या इग्नोरेंस के लिए, इग्नोरेंस तो क्या बोलेगा हिंदी, क्या हम लॉ नजरअंदाज, नजरअंदाज, हाँ हम लोग का नजरअंदाज के लिए हम लोग अपने का लॉ फेंक दिया 1953 में। और कैसा फेंक दिया देखिए, ये हमें देखिए, यहाँ में दिमासाओ भी है ये लॉ और कार्बी आंगलोंग भी है। ये 1953 में जुलाई 21 our own law we have thrown away, and the law that has been given to us is signed by S.K. Dotto, the Chief Secretary of Assam. It cannot be a law for us. It is signed by Chief Secretary. If it is a law for the Autonomous Council, it should have been signed by the chairman of the Autonomous Council. Now it is signed by the Chief Secretary, but we have accepted ignorantly. The same way, in 1959, again, we made a law. According to 6th schedule, it is the land, everything is for the tribal people. लेकिन 1959 में हम लोग और लॉ बन गया। ये लॉ बोलता है नॉन ट्राइबल के लिए जमीन देने को कुछ असुविधा नहीं है। Illegally, you can give land to the non-tribal people. In section 3, it is written that the executive committee can pass a resolution to give land to the non-tribal people. Who told you? Is it written in the 6th schedule? No, it is not written in the 6th schedule. How did you do it then illegally? But we have taken it to be law. And the Supreme Court and High Court, they have ordered that law made in 1953 is illegal. It is null and void. It has been written. It has been declared by the Supreme Court. I told the Autonomous Council of Karbi Anglong to repeal it immediately. We have told the Autonomous Council of Dimahasa also to repeal it immediately and to make our own law under paragraph 3. But we have not made the law. We are afraid of whom? We are afraid of, actually, because we have been ruled by National Party, so our people, our CM, EM, MLA, they always take ticket from National Party, so they are afraid of their high command. And the high command are afraid of the non-tribal people who are here. And so, we are afraid to make our own law. And we alienated our tribal land to the non-tribal people. আমি আমাৰ নন ট্ৰাইবেল সকলক আমাৰ নিজৰ মাটি দি থাকো। আইনটো ভাঙি পেলাই আমি এইটো কৰি আছো। Like this, there are so many. Now, in Dimahasao, to come it short because we have another meeting. To make it short, this panchayat,
regarding पंचायत, they told you, आप लोग को बोल दिया, ये आप लोग का बोलता है ये पंचायत नहीं होने से PNRD का फंड नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन आप लोग को नहीं बोला गवर्नमेंट वो लोग नहीं बोला व्हाट इज पंचायत, पंचायत क्या है, ये तो हम लोग को नहीं बोला। पंचायत मीन्स बाय व्हाट एवर, पंचायत मीन्स लोकल गवर्नमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल, नाम क्या हो सकता है हो जाएगा, लेकिन पंचायत आप लोग का पंचायत। इसीलिए हम लोग ये मिस्टेक कर रहा है, ये पंचायत तो हम लोग सोचता था ये पंचायत मीन्स इसका पंचायत बोला है, ये जो असम पंचायत का असम एंड अदर नॉन ट्राइबल एरिया पंचायत, लेकिन यह पंचायत में यह लिखता है दिस लॉ, this panchayat law is not applicable in autonomous council area. It is written this panchayat extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous council under the 6th schedule. 6th schedule में ये नहीं चलेगा, लेकिन we have taken it. Our what's that? Devolal Gorlosa Dangoria and our Tuliram Ronghang Dangoria, वो लोग ये 6th schedule तो नहीं जानता, इसीलिए ये प्लेन डिस्ट्रिक्ट का पंचायत लेता है। अभी ऑटोनोमस डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल में ऑटोनोमस काउंसिल तो नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी पंचायत जिला परिषद हो गया। जिला परिषद नाम जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, परिषद मीन्स काउंसिल, but without the word autonomous. The most important, that autonomous. This is the constitutional power given by the Constitution of India. That power will not be here. And if it is, I don't want to go that side anymore. Now, what actually we should do is, what Devolal Gorlosa should do is, and what Tuliram Ronghang should do is, he should make a list of all Tulsung Vaisa and all Raji Naisokho and all Selvan Kep and all Dorbar Shnong and all Songkho Dilgapa. He should make, and the list should be submitted to the government of India, and the government of Assam should be informed, and the government of India will send money direct to the autonomous, to the Rajina Isoko and to Sung Vaisa and others. This is the law. It is not illegal. It has to be done. Then if it is done, then we will be able to retain our 6th schedule and our autonomous power. It is not at all difficult. And government of India will not be angry, because we are doing according to law and our own culture. This is. Now, Tuliram Ronghang and Devolal Gorlosa and others, those who are in BJP or maybe in Congress also, they may think that it is not good. It cannot be accepted, they may think. But the 6th schedule, this is a constitution. It has this Constitution of India and Constitution of Dimahasao and Karbi Anglong have said that this Salaero and other
council of the tribal people must be accepted as per Article 243D of the Constitution of India. Therefore, what I'll do is, if I am elected, I will again recover all the power of the sixth schedule which has been granted to us. I will revive Rajinai Soko. I will revive Tulsung Vaisa. I will revive Servan Kep. I will revive Dorber Snom. I will revive Tinjim Tiripunyu Samsat Wen. I will revive Mukpom Chauban. And I will revive Songkho Dilgaba. Then you will have your own culture and your own law and your own identity. Otherwise, our own identity will be lost and will be nowhere. We will be nowhere. Why? Because the BJP is from where? BJP is born from the RSS. And RSS is born from this Manusmriti. This is Manusmriti. It is their constitution. I have discussed about this in seminars also. I said this Manusmriti has not been repealed. Yes, they said it is not repealed. It is still there. So the BJP wants to implement everything according to this Manusmriti. What does the Manusmriti say? It is not a matter of pointing out communal things, but it is from the book only. Because it concerns us very deeply. हम ट्राइबल के लिए तो बहुत important है ये. What Manusmriti says that the tribal people, ट्राइबल लोग जन्म हुआ ये आदमी का पाँव का अंदर से अंडर द फीट पाँव ना from under the feet of Brahma. Under the feet to क्या मिलेगा? यहाँ भी under the feet to कभी कभी गोबर भी होता है. हम लोग वो लोग बोला है ट्राइबल लोग गोबर का समान है. समान ना इक्वल समान है. तो कैसा होगा? हम लोग if ट्राइबल लोग गोबर का समान है तो हमको क्यों ऑटोनोमस देने होगा? गोबर तो क्या ऑटोनोमस लगेगा? ऑटोनोमस नहीं चाहिए गोबर को ना गोबर ना. इसलिए this book is not made by me. It is printed in India. We requested to send us from what is it? Zone ki Amazon. They sent us this picture also. इसलिए this thing, the RSS will implement it, and BJP will have to implement the order of the RSS. That is the reason why they want to take out autonomous power from the Mahasau and from Karbi Anglong also. And they have done already in BTC. BTC has got no power now. They have implemented something that is the MOU, MOS I think, 2.9 they have implemented. And in BTC there is no autonomous power anymore. That autonomous power বুলি BTC একো নাই এতিয়া. সেই কাৰণে আমি যদি বিজেপিক যদি আমি ভোট দি থাকো তেতিয়াহলে if we go on giving vote to the BJP, then we will not have our own identity also, not to speak of our political power. And who started this? But is it the BJP who started this? It was started by Congress. It started by Congress. ये कांग्रेस लोग
क्या क्या बोलेगा हाँ शुरू किया था ये कांग्रेस लोग यूसीसी भी कांग्रेस लोग शुरू किया था ना 1946 में जवाहरलाल नेहरू यूसीसी इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन टू फेसेस कॉइन ये टका है ना राउंड टका ये तो ऑन वन साइड तो बेलेग अलग अलग नक्शा है और आदि अदर साइड तो अलग नक्शा है लेकिन कॉइन तो एक ही है ये बीजेपी और कांग्रेस एक ही टका है वहाँ टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. Now the Congress candidate also only on that day he was BJP, and then the BJP leader now was Congress earlier. They are only changing. They are only changing only to get to be elected. That's all. Election जीतने के लिए पार्टी चेंज करता है वो लोग इतना है लेकिन वो लोग आदमी के लिए हम लोग के लिए क्या करेगा ये वो लोग का कुछ प्लान भी नहीं हम लोग प्लान करता है अभी हम लोग का मैनिफेस्टो में हम लोग बोला दिमाहासाव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होने होगा और एमएलए 3 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी होने होगा यहाँ में और यूनिवर्सिटी नहीं हम लोग आप लोग लेकिन 10 कॉलेज होने से यूनिवर्सिटी 1 यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना सो यूनिवर्सिटी यहाँ होने होगा और मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कॉमर्स कॉलेज लॉ कॉलेज यहाँ होने होगा और हम लोग डेवलपमेंट प्लान के लिए बहुत डेवलपमेंट प्लान हम लोग करेगा लेकिन स्पेशली दिस माई बम हिस्टोरिकल माई बम इट इज राइस बाउल ना राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इन हिल एरिया because there is no place to cultivate properly. We don't have plain areas. Now we should not destroy our plain areas. Whatever plain areas we have. In Israel, a small plain area near over the Jordan, I have gone there. A small area plain, but they have used it properly in Israel and cultivated and they produce more than sufficient food from Jordan Valley. Why not? Why not we produce the same way food along the what is that river? That is my Bang River, Mahur River, Mahur River. So we are going to take my Bang Valley, Mahur Valley, yes. Mahur River Valley Development Project for production of food and Jinam Valley Development Project that also for production of food. We may plant rubber, betel nut and coffee, anything like that, but we cannot eat that. No. That is the thing. If your child is very hungry, if you say, oh yes, I am very hungry, you eat betel nut, this will not do. No. इसीलिए हम लोग राइस पेडी कल्टीवेशन to करने होगा. And in Karbi Anglong itself also we will do the same thing. Umpanai Valley Development Project, Phonglangso Valley Development Project, and other valley development project, we will do that. And also, the roads condition are very bad. We will give importance to it. If the government do not sanction fund for us because we are regional party, then I will spend all my money
this MP Area Development Fund for development of the area. For Dimahasao mainly, and for West Karbi Anglong, this is, and then in Karbi Anglong itself. I will divide the fund properly so that it is development plan is taken up in both in all the 3 districts. I will not speak now so much. People are also tired. ভাগৰ লাগিছে সবে নহয় জানো আকৌ গাঁৱলৈ ঘৰলৈ আকৌ যাব লাগে সেইকাৰণে আমি দীঘল নকৰো আপোনালোকে যাবলৈ খুব বিচাৰিছে মই দেখিছো it is already going to be 4 I think and moreover before 3 now we are supposed to end our meeting we are supposed to end our meeting before 3 so with these few words I promise that if I am elected, I will do everything possible for Dimahasao. And I said, he also already said that in Dimahasao, in Haflong itself, I will try to have a rented house. And if possible, I will construct MP house, not bungalow. Bungalow is too big. No, MP house. No, only maybe 3 rooms or some type house. So that I will come at least once a month to Dimahasao and meet all other people. With these few words, এই কথা কৈ মই মোৰ কথাখিনি ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ थैंक यू श्री जय कथार जी आप ने हम लोग को ये वादा दिया कि आने वाला दिन में हम लोग को 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ में हम लोग को यहाँ में इलीगली जो 6 शेड्यूल को वायलेट करके कुछ चीज डाला है जैसे कि पंचायती राज का सिस्टम डाला है वो सब के बारे में आपने बोला कि बाद में आप MP बनने के बाद में इसको रोकेगा इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है और आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि आपका जो ये सिंबल है जो कैंची ज्यादा बड़ा वाला नहीं मिला छोटा वाला मिला लेकिन बड़ा वाला नहीं लगता कागज काटने के लिए छोटा वाला काफी है हाइडर है तो हम रिक्वेस्ट करता है कि आप MP बनने के बाद में हम लोग को 2019 में जो GPDP का जो काउंसिल से जो पंचायती सिस्टम GPDP को अप्रूवल कर दिया वो पेपर तो आप काट दो ऐसे करके काटेगा ना नहीं काटेगा ना काटने लगेगा ठीक है और अभी पंचायती राज का वेबसाइट में जाने से हाफलोंग गांव पंचायत का सरपंच डेनियल लंकासा बोल के अभी भी है हम तो MSc है ना हम तो MSc था पहले लेकिन अभी भी वेबसाइट में लिख की है हाफलोंग गांव पंचायत का सरपंच डेनियल लंकासा तो वो कागज को भी आप काटने लगेगा कैंची से ठीक है कैंची से ही काटने लगेगा अभी उपाय नहीं और काउंसिल को तो बहुत रिक्वेस्ट कर दिया हम लोग को नहीं करता है तो हम खुद MSc होके करने नहीं सका तो इसीलिए आपको लोकसभा में पार्लियामेंट में हम लोग को सेंटर में दिल्ली में जाके ये चेंज करने लगेगा ये काटने लगेगा ये चीज तो इसीलिए सिंबल भी अच्छा मिला है कैंची ये सब अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो चीज होते है हम लोग को ये हमें काटने लगेगा अगर कल परसों यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया तो उसको भी हम लोग यहाँ में तो काटने लगेगा उसको काटने के लिए कैंची से काटने लगेगा CAA भी काटने लगेगा तो अभी आप लोगों जो वीडियो में भी कोई देखते हैं हमारा ये स्पीच और कोई यहाँ में डिमाहासाओ से हम लोग का रांखोल भाई लुकुन आया है वो लोग भी एक बार फेलिसिटेट करेगा बोला पहले में मौका नहीं मिला इसलिए हम माफी चाहता है तो हम लोग का रांखोल कम्युनिटी के तरफ से हम लोग को कैंडिडेट को एक बार फेलिसिटेट करेगा बोला
रांखल। थैंक यू। आज अलग अलग हम लोग का जो ट्राइबल यूनिटी हम लोग को देखने को मिलता है। हमारा यहाँ में रांखल कम्युनिटी भी आया है। वो लोग को भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है दोलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आने वाला दिन में वहां में भी हम लोग का कैंडिडेट जाने से बहुत अच्छा रहेगा। एक बार तो आप लोग से ज्यादा दूर नहीं है, वो हम लोग को रिक्वेस्ट करता है ना नहीं? रांखल भाई बहन आप लोग भी चाहेगा ना नहीं हम लोग को कैंडिडेट एक बार जाने के लिए? हाँ। तो आज बहुत तकलीफ करके हम लोग का कैंडिडेट भी, लेकिन तकलीफ करने से भी हुआ है। हाफलोंग हिंदी थोड़ा निकला है मुख से। तो हाफलोंग हिंदी तो सकलेगा बोला। तो बॉलीवुड शाहरुख खान को हिंदी नहीं सकने से भी हाफलोंग हिंदी तो सकलेगा, है ना नहीं? हाफलोंग हिंदी तो इतना भी तकलीफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा गलती होने से भी ठीक है। तो लेकिन हम लोग का जो कैंडिडेट है ज्यादा इंग्लिश में बात करता है। तो आज का स्पीच में भी बोला है हाफलोंग हिंदी कोशिश करो, थोड़ा आसामीज बोला, लेकिन बहुत इंग्लिश भी यूज करा। तो हम लोग को कोई लोग सोच नहीं सकता बा हम लोग को एमपी तो इतना हाई फाई है, इंग्लिश मारता खाली। हम लोग को डिमा हासा को कोई सोच नहीं सकता, जो फर्स्ट टाइम सुना ना इतना हाई फाई है, इंग्लिश मारता। तो कल एमपी बोलने से, हम बात करने से हमारा बात समझेगा ना नहीं, हम तो इंग्लिश नहीं सकता, ऐसे कोई सोच नहीं सकता। लेकिन समझता है तो हिंदी तो समझता है ना, खाली बोलने में कभी कभी थोड़ा क्लियर नहीं होता, क्योंकि पूरा जिंदगी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते चल गया। तो 6 शेड्यूल पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में लिखा ना अभी पढ़ने लगेगा। लेकिन हम आप लोग को बोलता कि देखो हम लोग को लोकसभा में, पार्लियामेंट में अभी इंग्लिश जानने वाला आदमी भेजने ही लगेगा, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में लिखता। अभी जो बिल नया पास होगा 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो भी इंग्लिश में लिखा, 6 शेड्यूल में इंग्लिश में लिखा। अभी हम लोग को लीडर लोग कोई लोग इंग्लिश नहीं जानता बोल के लोग नहीं पढ़ के साइन मार देता। एक तो प्रॉब्लम है। अभी इंग्लिश ज्यादा अच्छा है खराब है हम नहीं बोला, हिंदी भी अच्छा है, अरबी भी अच्छा है, डिमासा भी अच्छा है। एक आदमी तो सब लैंग्वेज नहीं सकेगा, लेकिन अगर सब हम लोग को डॉक्यूमेंट ज्यादा इंग्लिश में आता तो इंग्लिश पढ़ने सकने जरूरी है ना नहीं? आप लोग बोलो तो है ना? अगर हम लोग को लीडर काउंसिल में जो है उन लोगों इंग्लिश पढ़ने नहीं जानने से तो उन लोग तो कुछ मालूम नहीं हो कि साइन मार देगा ना। तो उसको लेफ्ट राइट जो आदमी बैठा है उन लोगों बुर्बक बनाई देता। तो असल में हम लोग को सीएम ईएम टू दूसरा लोग है जो पीछे में जो लोग इंग्लिश पढ़ने जानता, तो असली लीडर लोग उन लोगों को बेचारा बुर्बक बनाई देता। तो उसको बदली हम लोग जो खुद इंग्लिश जानता उसको भेजने से ठीक है ना नहीं? बोलो तो ठीक है ना? हाँ। तो आसाम में है हम लोगों इंग्लिश को छोड़ के थोड़ा आसामीज भी तो जानने लगेगा। कुछ चीज तो आसामीज में आता है, तो आसामीज भी तो जानता है ना नहीं? तो इसलिए हम लोगों का टाइम आ गया कि क्वालिफाइड वाला लीडर भेजने के लिए, क्वालिफाइड वाला लीडर भेजने के लिए बहुत जरूरी हो गया। अभी कोई हम लोग को डिमा हसाव का जो लोग आया है मालूम होने सकता, कोई मालूम नहीं होने सकता, इसलिए हम बोल देगा। हम लोग को जो कैंडिडेट यहाँ में है वो जो आगे में एक तो आईएएस ऑफिसर भी था, रिटायर्ड आईएएस है, और हम लोग को अलग अलग पोस्ट में जो काम करके आया है, डीसी भी बन के आया है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा वाला क्वालिफाइड आदमी हम लोग को भेजना जरूरी है। क्वालिफाइड होके हम लोग को 6 शेड्यूल के बारे में फाइट नहीं करता, ऐसा भी कोई होता है, लेकिन ये तो क्वालिफाइड भी है और 6 शेड्यूल के बारे में भी बिना डर से बात करता है। हम फर्स्ट 2018-19 में हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करा, उसका पहले में, लेकिन हम आज भी याद है यही हॉल में, ये टाउन राजी कम्युनिटी हॉल बोलता है, आज आदमी ज्यादा आया बोल के हम लोग बाहर में है। उस टाइम में तो 6 शेड्यूल के बारे में सुनने के लिए बहुत कम आदमी लोगों को आता रहा, इंटरेस्ट रहा। आज तो सब भी जाग गया है, इसलिए इतना आदमी ज्यादा है। 2016 का बात है, इस हॉल का अंदर में मीटिंग रखा रहा, बहुत कम आदमी रहा, 15 आदमी जैसे होगा।
हम भी गया था क्योंकि हमको भी बहुत इंटरेस्ट रहा कि 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ा हमको भी और जानना है बोल के। तो वो जो मीटिंग रहा वो 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बोल के ऑर्गेनाइज किया था वो लोग ने, और वहां में एक तो गेस्ट स्पीकर वो हम लोग का जय कथर जी को इनवाइट करा रहा उस टाइम में। तो उस टाइम में वो 6 शेड्यूल के बारे में, उसका पावर के बारे में, और जो हम लोग का पावर जैसे डाइल्यूट हुआ है इतना सालों से उसके बारे में बोला। तो 2016 के टाइम में अभी 8 साल हो गया है। 8 साल आगे से वो फाइट कर रहा है। 15 आदमी हो ना 100 आदमी हो। तो कोई कोई कल मीडिया वाला लोग हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पूछा रहा, इलेक्शन के टाइम में क्यों आर्टिकल 244A का बात निकलता है, इलेक्शन के टाइम में क्यों ऑटोनोमस स्टेट का बात निकलता है। हाँ, हम मानता है, क्योंकि अभी हम कल परसों देखा बीजेपी का मीटिंग में भी वो लोग बोला आर्टिकल 244A देगा। खुद चीफ मिनिस्टर बोला कार्बी आंगलोंग में। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो लोग भी बोला आर्टिकल 244A देगा। तो अभी आदमी पूछ रहा है और मीडिया लोग पूछ रहा है कि एपीएचएलसी भी देगा बोला, कांग्रेस भी देगा बोला, एएसडीसी भी देगा बोला, बीजेपी भी देगा बोला। लेकिन सिर्फ इलेक्शन का टाइम में ही ये सब पार्टी बात किया है। इलेक्शन नहीं होने में भी दिन रात हमेशा जय कथर जी तो अकेला होने से भी वो आर्टिकल 244A के बारे में, ऑटोनोमस स्टेट के बारे में वो फाइट किया है। आज हम इसलिए रिक्वेस्ट करता है कि जितना डिमा हासाओ का लोग है कार्बी आंगलोंग में, तो हम लोग को भी देखने को मिलता है, और इस बार तो हम लोग उनको विश्वास है और देखा भी है सब मीटिंग में, ट्राइबल यूनिटी होके जय कथर जी को जिताएगा ना। नहीं, कार्बी आंगलोंग से तो जिताएगा बोल के हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस है। जिताएगा ना, जिताएगा पूरा। तो हम लोग भी यहाँ में डिमा हासाओ से हम लोग भी पूरा जोर लगाएगा जिताने के लिए। हम लोगों ने यहाँ से पूरा आज टीएमसी पार्टी पूरा सपोर्ट दिया है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट दिया है। जितना लोग हम लोगों जो पार्टी में है इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट नहीं होके सोशल वर्कर, वो लोग भी आके हम लोग जोरदार से ये और 2 हफ्ता जैसे बचा है हम लोग काम करेगा, अपना दिल लगा के हम लोग काम करेगा। क्योंकि ये इलेक्शन का बात नहीं है, ये जैसे कि मैंने पहले बोला शुरू में, आज हम लोगों को ये एक लड़ाई है अपना 6 शेड्यूल को बचाने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा मत सोचो कि 6 शेड्यूल है तो हमेशा रहेगा बोल के। ये 6 शेड्यूल परमानेंट नहीं है। ये एसटी स्टेटस शेड्यूल ट्राइब वो परमानेंट नहीं है। जिस दिन सरकार मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खत्म करने के लिए, इसको खत्म कर सकता है। जिस दिन हम लोग को शेड्यूल ट्राइब नहीं है बोल के खत्म करने चाहता है, वो लोग खत्म कर सकता है। हम लोग भी तो शेड्यूल ट्राइब होने नहीं मांगता। हम भी तो ठीक है, हम भी जनरल जैसा है, हम भी मांगता होने के लिए, आप लोग सब भी मांगता होगा। लेकिन सच्चाई तो ऐसा नहीं है ना। कल परसों हम शेमकोर एक बस्ती से आया, अभी भी वहां में बाथरूम नहीं है, अभी भी वहां में स्कूल नहीं है। हम लोगों भी एसटी स्टेटस लेके खुशी नहीं है। हम लोगों भी कुछ नॉर्मल आदमी जैसे होने मांगता। आप डेवलप जगह में जाओ, सिंगापुर में जाओ, अमेरिका में जाओ, कोई जनरल, कोई एससी, कोई एसटी ऐसा नहीं है। तो लेकिन वहां में एक तो इक्वल राइट मिलता है सबको। आज हम लोगों को भी इक्वल राइट दो, लेकिन वो देने का आगे हम लोग को पहला फैसिलिटीज भी तो पहला आने लगेगा। पहला हम लोग को घर गांव में पहला तो स्कूल भी पहुंचने लगेगा, हम लोगों को पहला एजुकेशन अच्छा से मिलने लगेगा, उसको बाद में। तो अभी हम लोगों को ऑलरेडी पंचायती राज आप लोगों को ढाल देता है ऐसे करके। अभी ऑलरेडी आप लोगों यहाँ में सीए असम में लागू कर देता है, उसके बाद यूसीसी लाई देगा बोला। ऐसा होने से तो हम लोगों का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अपना 6 शेड्यूल को बचाने के लिए, अपना आइडेंटिटी बचाने के लिए हम लोग को अपना एक टू पार्लियामेंट में, दिल्ली में एक तो आवाज भेजना है जो उसके बारे में बात करेगा। ना हॉरेन सिंह बे का जैसे राजधानी का एक तो ट्रेन स्टॉपेज मांगेगा, डिपू में जैसे मांगा हो। देखो, हम हॉरेन सिंह बे को हम पर्सनल अटैक नहीं करता है, उसको पर्सनली हम नहीं बोला, लेकिन वो एमपी होके जो काम करा वो तो हमरा बोलने हक है ना, नहीं हक है ना।
हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव रहा तो उठो, हम लोग को लीडर बन के गया तो उठो। अगर हरेन सिंह बे इतना अच्छा काम करा तो बीजेपी से टिकट क्यों नहीं दिया उसको? हमको बोलो तो, क्यों टिकट नहीं दिया उसको? अगर इतना अच्छा काम करा, अभी भी तो जवान है ना वो, हरेन सिंह भी तो अभी भी जवान है, स्टेज में गाता है, पापुन के साथ में हम देखा है, हाँ अभी भी तो एनर्जी है, क्यों उसको फिर टिकट नहीं दिया? कुछ तो गड़बड़ हुआ बोल के तो टिकट नहीं दिया ना। लेकिन ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। आप वादा दो, हरेन सिंह बे का मैनिफेस्टो में क्या लिखा रहा कि आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट करेगा, नंबर 1 में लिखा था ऑटोनोमस स्टेट देगा। लेकिन हरेन सिंह भी एमपी बनने के बाद जब पार्लियामेंट में फर्स्ट सवाल पूछा आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट कब होगा, वहां में क्या लिखा जवाब में, आप लोगों भी जाके देख लो, सब पब्लिक रिकॉर्ड में है, इंटरनेट में भी आप गूगल में डाउनलोड करके मिलेगा। आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस स्टेट डिमांड को लेके कुछ भी प्रपोजल नहीं है, कुछ भी हम लोग को चिंता नहीं है बोल के ऐसा जवाब दे दिया। अभी सरकार से ऐसा जवाब दे दिया तो अभी इलेक्शन के टाइम में फिर अगर कोई लीडर आके बीजेपी का बोलने से हाँ हम लोग को आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट करेगा, कैसे विश्वास करेगा? आप पार्लियामेंट में बोल दिया, अपना खुद का एमपी को ऐसे जवाब दिया, तो अभी हम लोग को क्यों झूठ बोलते हैं? तो इसीलिए अभी आप लोग को नया आदमी अमर सिंह टीसो को नया से फिर झूठ बोलने के लिए देगा, 5 साल बाद में फिर उसको चेंज कर देगा, ये तो कैसा होगा? अभी कांग्रेस को भी हम खराब नहीं बोलता है पार्टी ना, उसका लीडर जो जयराम एंगलेंग जो कैंडिडेट है उसको भी हम पर्सनल हम कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन 2019 का जो मैनिफेस्टो था हरेन सिंह बे का, उसका साइड में जयराम एंगलेंग का चेहरा भी है फोटो में, सेम फोटो में। तो अभी वहां वो पार्टी छोड़ के अभी कांग्रेस में आके हम आर्टिकल 244A देगा बोला, वो कैसा विश्वास करेगा हम? और हिमंत बिश्व शर्मा जी डायरेक्टली बोलता है कांग्रेस से जीतने से भी क्या लाभ है, इलेक्शन के बाद तो बीजेपी आ जाएगा बोलता सब। और जाते ही भी है, कितना जन चला गया कांग्रेस के एमएलए लोग, एमपी लोग चला गया। तो जयराम एंगलेंग तो कल ही आया था बीजेपी से, जीतने के बाद फिर नहीं जाएगा, क्या गारंटी है? गारंटी नहीं है ना, वो डर है तो नहीं भी जा सकता है, जाने का भी चांसेस है। लेकिन जेआई कथार जी तो पार्टी का प्रेसिडेंट है, इतना साल से अकेला फाइट करते हैं, उसका जाने का चांसेस थोड़ा कम है ना? नहीं होगा ना, जाने भी सकता बाई चांस, लेकिन अभी तो क्या बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, दुनिया में तो बोलने नहीं सकता। अभी कल परसों सेंटर में कोई बीजेपी हार गया तो सब बीजेपी वाला लोग यहाँ लोग फिर कांग्रेस भी आ जाएगा होगा, ऐसे तो होता है ना। नहीं तो अगर एपीएचएल से जीत गया तो कल परसों सब एपीएचएल से आ जाएगा, है ना? नहीं, चलो सब एपीएचएल से ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हंसी मजाक किया, लेकिन जेआई कथार जी देखो आज का दिन में स्ट्रगल करके फाइट करके उससे कुछ एपीएचएलसी में स्ट्रगल करके आज चलो को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अपना घर, अपना बिल्डिंग, अपना गाड़ी खरीद तो नहीं रहा है ना वो लोग। हम लोगों ने भी आज जो फाइट करा है कुछ हम लोग को यह फायदा नहीं है। आज का दिन में हमको भी बहुत कांग्रेस से फोन आते हैं, कैंडिडेट लोग खुद हमको फोन किया यहाँ में आने में भी, आप लोग में भी, हमको बीजेपी से भी फोन किया, लेकिन हम बोला नहीं, फोन को हम साइलेंट मोड में रख दिया। वो लोग फोन करने में, सच बात है, साइलेंट मोड में रख दिया, फोन नहीं उठाएगा। इस बार जो भी हो हम लोग को ट्राइबल यूनाइट होना है, ट्राइबल यूनाइट होना है। और ट्राइबल यूनाइट होना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन ट्राइबल से हम लोग को कुछ दुश्मनी नहीं है रे भाई, हम लोग को नहीं है। तो हम आज अपील भी करता है डिमा हासाओ कार्बी लोगों को, जितना नॉन ट्राइबल है, जो आप लोग पहले से यहाँ में है, आप लोगों भी यहाँ में 6 शेड्यूल है बोल के आप लोगों भी राइट्स एंजॉय करते हैं। हम लोग को यहाँ काउंसिल में बंगाली का नॉमिनेटेड एमएससी मिलता है, नॉमिनेटेड गोरखाली का एमएससी मिलता है। हम तो तकलीफ करके हाफ लोग में सबको खिलाए फुसलाए कि फिर भी कभी इलेक्शन जीतता है, कभी हारता है। वो लोग तो बिना इलेक्शन जीत की भी आराम से हमें ऐसा नॉमिनेटेड एमएससी मिल के जाता है। उससे अच्छा और क्या है बोलो तो, उससे अच्छा और क्या राइट है? तो हमारा बंगाली भाई और हमारा गोरखाली भाई, ये काउंसिल और 6 शेड्यूल चला जाएगा तो कल आप लोग को ऐसा आराम मिलेगा? इतना आराम से आप लोग को नॉमिनेटेड एमएससी जो मिलता है, और नॉमिनेटेड एमएससी मिलके आप लोगों को भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, कुछ काम मिल जाता ना, वो कहाँ मिलेगा?
यहाँ में आप लोगों इतना कम पॉपुलेशन में भी इतना अच्छा पावर एंजॉय करता है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होता रहा तो आप लोग उतना करने नहीं सकता रहा, ट्राइबल के बीच में रह के। तो यहाँ में जितना जो समझदार जो नॉन ट्राइबल है तो जरूर भी 6 शेड्यूल को सपोर्ट करेगा और जरूर भी जय कथर जी को सपोर्ट करेगा। हम वो आशा करता है नॉन ट्राइबल लोग भी सपोर्ट करेगा जो समझदार है। हाँ, जो अभी इलीगली और भी घुसना चाहता है और कल परसों घुस की यहाँ में पीआरसी बनाना चाहता है, यहाँ का वोटर आईडी लेना चाहता है काउंसिल का, कल परसों घुस की और जो प्लान कर रहा है घुसने, वो सब तो हम लोग को काट देगा, काटने लाएगा ना। वो सब नाम तो हम लोग को काट देगा, वो सब नाम तो हम लोग डालने नहीं सकेगा। हम लोग अपना को बचाना है। तो आने वाला दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को यहाँ में डिमा हासाओ में तो पंचायती राज ऐसे घुसा दिया है और सबसे डर का बात 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप लोग जो कार्बी आंगलोंग से है आप लोग को शायद हम लोग को सार लोग तो जानकारी दे दिया होगा। डिमा हासाओ में हम लोग को कोशिश करते हैं अभी अवेयरनेस देने के लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है जहां में 6 शेड्यूल है उसको बदलने के लिए एक नया बिल एक तो बनाया है। वहां में क्लियरली लिखा है कि ये क्यों बदल लाएगा, यहाँ में 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज सिस्टम लेके आने के लिए वहां में क्लियरली ये बिल में लिखा है। ये बिल अभी राज्यसभा में है। अभी इलेक्शन होने के बाद नया पार्लियामेंट बैठेगा और उसके बाद राज्यसभा में जब ये मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो ये बिल नहीं, ये लॉ हो जाएगा। और ये लॉ होने के बाद में हम लोग जितना भी धारणा करो, जितना भी हम लोग को ब्लॉकेट करो, जितना भी हम लोग चिल्लाओ, जितना भी हम लोग मेमोरेंडम दो, वो और बदलने नहीं सकेगा। वो लॉ हो जाएगा, हम लोग को 6 शेड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन बिल को हम लोग को पार्लियामेंट में रुकाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में अगर हम लोग का खुद का एमपी अगर चुपचाप बैठेगा जब ये पास होगा और ऑब्जेक्शन नहीं देगा, तब तो बाकी एमपी लोग को तो खुशी खुशी पास कर देगा ना। वो लोग तो सोचेगा कि अरे एमपी चुपचाप है तो मतलब एमपी सपोर्ट में है। तो हम लोग को वो एमपी भेजना है जो ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट में नहीं है। ऐसा वाला आदमी हम लोग को भेजना है। दुख का बात है कि ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके जब स्टैंडिंग कमेटी लोग मीटिंग कर रहा था, मतलब सबका बात लेने के लिए कि आप लोग एग्री करता है ना नहीं, ये चीज चाहिए ना नहीं, गुवाहाटी में मीटिंग हुआ। उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ मेघालय तो वो लोग तो रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वहां में लिखा है कि मेघालय में तो नहीं होगा बोल के। लेकिन असम में हम लोग का असम गवर्नमेंट से एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। लेकिन उस टाइम में हम लोग का जय कथार जी भी था, आप लोग गया था ना, एपीएचएलसी की तरफ से गया और वो लोग ऑब्जेक्ट किया, ये हम लोग को ऑब्जेक्ट करता है बोल के। वो बिल में भी उसका रिमार्क्स, उसका आर्गुमेंट में भी वो निकलेगा, आप लोग को प्रिंट आउट करके निकलाएगा तो वहां निकलेगा। लेकिन हम लोग का काउंसिल का कुछ भी बात का वैल्यू नहीं हुआ, हम लोगों का ऊपर में थोप दिया है, तो मतलब करेगा ही करेगा बोल के बोल दिया और हम लोग का एमपी भी कुछ नहीं बोल सका। इसलिए वही दुख का बात है, एक ही एमपी हम लोग भेजता है पार्लियामेंट में, ये सब बिल टू पार्लियामेंट में पास होता है, लेकिन हम लोग का एमपी चुपचाप बैठा है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए अभी हम लोग को एक ही हम लोग का आवाज बच गया है, एक ही हम लोग का होप एक तो बच गया है कि जय कथार जी तो जैसे हमेशा करते आया है, यहां में हम लोग को साथ में पार्लियामेंट में जाके भी करेगा। हम लोग को भी जब देख के अच्छा लगेगा, हम लोग को भी तो एक लीडर तो मिलेगा जो पार्लियामेंट में हम लोग को डिमा हासाओ के बारे में, कार्बी आंगलोंग के बारे में कंटिन्यूअस फाइट करते हैं बोल के हम लोग को भी देखने को मिलेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम मोदी भी आ गया पार्लियामेंट में फिर जीत के, तो हम लोग को जेआई कथार वर्सेस मोदी का इंग्लिश में डिबेट तो देखने को दिल लगेगा, है ना? नहीं तो मोदी का हिंदी और हम लोग का कथार जी का हिंदी का डिबेट देखने को अच्छा लगेगा। तो इतना बोल के आप लोग को हम वोट ऑफ थैंक्स देता है। यहाँ में जो जितना लोग आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में हम लोग को मदद किया, टीएमसी का प्रेसिडेंट आचिंग जी और उसका मेंबर्स टीम लोग,
आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बाबूजीत लांगथांसा जी और उसका टीम लोग, और उसके बाद यहाँ में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो एपीएचएलसी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का मेंबर्स लोग, रोमेश कथार जी और उसका टीम, मिस बियाते रोदीपुई बियाते पार्टी, कुछ यहाँ में छोटा मोटा होने से भी ये लोग स्ट्रगल करके आया है, नई हिल के आया है, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आज हम लोग को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आदमी आ गया रहा, इसलिए अंदर में मीटिंग करने बात था, लेकिन बाहर में, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में हम लोग को टारपोलिन लगा दिया, हाँ बांध के ऐसे, तो वो काम करके देख के इतना अच्छा लगा। मतलब ऐसा पार्टी नहीं, अभी ऐसा क्राउड नहीं है ये जो 500 रुपया के लिए आया, नहीं तो मांसो खाने के लिए आया, यहां में बात सुनने के लिए आया, 6 शेड्यूल को बचाने के लिए आया। इसलिए लगने से टारपोलिन भी अपना से बांधा, और जब साउंड सिस्टम खराब हुआ तब हम लोग यहाँ में खुद से हम लोग सब मैनेज किया। इसको बोलता यूनिटी। आने वाला दिन में ऐसा वाला डेमोक्रेसी चाहिए हम लोग को, ऐसा वाला डेमोक्रेसी। थोड़ा देर आगे में हमको मोबाइल फोन में एक आदमी भेजा, कार्बी आंगलोंग का ये जो मीटिंग का अभी शेड्यूल है ना आने वाले दिन, वो देखा 15 ठू जैसे जगह है, 7 ठू ना 8 ठू जगह में बाय कार लिखा, मतलब बाय कार जाएगा, 9 ठू जगह में हेलीकॉप्टर से जाएगा बोला यार, हेलीकॉप्टर से। आज का दिन में जब हम लोग का गांव में रोड नहीं बना है, कार्बी आंगलोंग में उस दिन में हम लोग बोरो लंगथेर में गया, एक दिमासा एक बच्चा का एक रेप हुआ, उस टाइम में हम लोग को लीडर लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम बहुत दुख लगता कि हमारा खुद दिमासा का एक लीडर भी हम लोग को एमएससी है, लेकिन वो भी चुप बैठा। क्या बात से? ये क्या कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का बात है नहीं? क्या नहीं है ना? हम लोग को दिमासा लड़की का एक ठू ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी वो चुप बैठा। हम जब यहाँ से गया हमको कितना दुख लगा कि वो हमें कार्बी बस्ती है, दिमासा बस्ती, इतना रास्ता खराब है उधर में, और हम लोग को जो मार्केट क्रॉस करके गया तो हम लोग का अपना इंडिजिनियस आदमी है ही नहीं वो मार्केट में, सब बाहर का लोग आके कैप्चर करके है। लेकिन उसको बढ़ाने का बदले इलेक्शन जीतने का है, क्या है, पहुंचना तो है, हेलीकॉप्टर से जाएगा। ये क्या बात है? हम लोग को हेलीकॉप्टर में तो कभी हम लोग को सपना भी नहीं देखने से आएगा उठने के लिए। इलेक्शन कैंपेन के लिए हेलीकॉप्टर के लिए हम लोग पैसा फेंक नहीं सकता, लेकिन हम लोग को अपना गांव का आदमी का एक तो अच्छा घर बनाने के लिए, एक तो अच्छा एजुकेशन देने के लिए, रोड देने के लिए, वो चीज में हम लोग का ध्यान नहीं है। तो आने वाला दिन में एक आदमी से ये काम नहीं होगा। आप लोगों सब आज मिलके जैसे ये मीटिंग को सक्सेस कराया, आने वाले दिन में हम लोग को डेमोक्रेसी को, पीपल्स डेमोक्रेसी, नॉट ए वन मैन काउंसिल, नॉट ए वन मैन डेमोक्रेसी, वो करने में आप लोग को सब साथ देगा। इसलिए एपीएचएलसी का जितना मेंबर्स लोग हैं, आप लोग को भी हम थैंक्स देता है। आप लोग का डेडिकेशन बहुत इंस्पायरिंग है, हम लोग को भी बहुत सीखना है, आप लोग से धीरे धीरे सीखेगा। और यहाँ में जितना अलग अलग जात का आया है, सब कम्युनिटी का हम थैंक्स देता है। बहुत तकलीफ से खारतोंग कम्युनिटी से, खारतोंग वाला लोग को हम स्पेशली थैंक्स देना चाहता है। हमें बुरा भाई लोगों है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले हम खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, एमपी साहब और चीज एक एमपी साहब बोल दिया, देखो अभी, हाँ मुझसे निकाल गया, देखो एमपी हो गया ना, प्रैक्टिस कर दिया मतलब। तो आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि खारतोंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है हम लोग का, और खारतोंग का जो एक जैसी नामपुई बोल की था, जामचोंगा नामपुई, वो एसटी शेड्यूल ट्राइब में इंडिया में फर्स्ट आईएएस होने वाला वो खारतोंग का एक तो छोटा सा मोलदाम बस्ती का है। आप सोचो पूरा इंडिया में एसटी का जो फर्स्ट आईएएस हुआ था, वो हम लोग का एक दिमा हाउस का एक बस्ती मोलदाम, एक बियाते बस्ती उधर से 1954 ना तब में निकला था। लेकिन आज का दिन तक भी वहां में अच्छा रोड नहीं पहुंचा है। इस बार जाने में इतना ओनली 40 किलोमीटर ना, कितना किलोमीटर ऐसे कुछ है, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, ज्यादा लंबा भी नहीं है। 10 टू जैसा बस्ती है, वो मेन रोड है, लेकिन वो मेन रोड कनेक्ट नहीं होता है, मतलब अभी भी ऐसा खराब रास्ता है। 37 किलोमीटर ओनली। तो आप हमारा यहाँ में जीत के आएगा तो आप फाइट करिए, वहां में एक तो रोड तो इमीडिएटली देने के लिए बहुत सारा जगह में भी है,
लेकिन वहां का हालत इतना खराब है और हम लोग को फर्स्ट STIS को भी आज तक इज्जत देके हम लोग को अच्छा वाला एक तो रोड देने नहीं सका, वो बहुत दुख का बात है। लेकिन तकलीफ करके उधर से आज वो लोग आया ये मीटिंग में अटेंड करने के लिए, इसके लिए वो लोग के लिए भी एक बार फिर से ताली बनता है। और हम लोग को रामफल भाई बोलो, जेमी भाई बोलो, मार भाई लुकुन, दिमासा भाई लुकुन, सब मिलके आया अलग अलग कम्युनिटी का, इसलिए आप लोगों को बहुत थैंक्स देता है। हाँ तो और वो सबसे रिक्वेस्ट करा बोलने के लिए कोल्डेस्ट प्लेस इन आसाम बोला, वहां में फुरुक बोल के एक तो ज्यादा है, कोल्डेस्ट प्लेस इन आसाम है। आप लोगों भी कभी घूमने जाओ, हम लोग का सर MP बनेगा, रोड बना देगा, उसके बाद सब घूमने जाएगा ना। हाँ और उसके बाद यहाँ में आज ये कम्युनिटी हॉल में यहाँ का मेंबर्स लोग जो ये हम लोग को हॉल दिया, वो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। जो लोग गाड़ी चला के ड्राइवर बन के आया तकलीफ करके, वो लोग को भी बहुत बहुत थैंक्स। दीपेन रोंगपी बोल के APHLC के हम स्पेशल मेंशन देगा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ कर रहा है कितना दिन से। यहाँ में बैठ गया हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा दो सब मालूम होने लगता ना। ये पार्टी के लिए ये आदमी काम करते हैं दिन रात, कितना दिन से यहाँ में, दिन नहीं बोलेगा हफ्ता महीना हो गया डिमा आसाम में घूम रहा है। और उसके बाद में रोहित क्रमसा भी साथ में है इसके साथ में, तो रोहित आप भी हाथ उठा दो एक बार। हाँ रोहित क्रमसा भी बहुत मेहनत करके वो लोग काम कर रहा है। तो ऐसे ही आने वाला दिन में सब मिलके हम लोग काम करते रहेगा और आशा करता है कि इस बार हम लोग जो बदलाव को लिए इतना साल से रुका रहा, अल्टीमेटली हम लोग सक्सेस कराएगा। और जरूर भी हम लोग जय कथार जी को केंची मार्का में, केंची सिंबल में हम लोग को वोट देगा और उसको हम लोग को डिमा हासाओ और कार्बी आंगलों की तरफ से लोकसभा MP बनाएगा और हम लोग को 6 शेड्यूल को बचाएगा। और मेरे साथ में इसलिए खत्म करते करते स्लोगन आप लोग भी दीजिए, हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट के लिए, आर्टिकल 244 के लिए और हम लोग को ट्राइबल यूनिटी के लिए। नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट, नो ऑटोनोमस स्टेट। आर्टिकल 244A, आर्टिकल 244A, आर्टिकल 244A, आर्टिकल 244A, long live tribal unity, tribal unity, tribal unity, 6th schedule, 6th schedule, 6th schedule, 6th schedule, जय कथार जी, जय कथार जी, जय कथार जी, APHLC, 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 थैंक यू। जुटाई, कार्टोम, कैलोम, चिबाई, नमस्ते सबको।